درود ابراہیمی کی فضیلت۔ درود ابراہیمی ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ اللہ والو، آپ جو چاہیں اپنے رب سے منوا سکتے ہیں۔ 2025 کا آج کا نیو بیان ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، درود ابراہیمی یہ ایک پاکیزہ اور بابرکت درود پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی خدمت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھا، یعنی نبی مکرم شفیع معظم آپ سب کے اور میرے لجپال آمنہ کے لال جب معراج پاک پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے امت کو سلام کہنے کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر سلام کہا۔ اب قیامت تک ہر مومن، ہر مسلمان جب بھی نماز کو ادا کرے گا، نماز میں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کی ذات اور ان کی آل پر سلام ہوگا، اور اسی طرح میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور کی آل پر سلام ہوگا۔ یہ وہ درود پاک ہے جو تمام درود پاک کے صیغے ہیں، ان میں سے تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں حضور کی زبان وہ زبان ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اور حضور نے جو فرمایا یا وہ صبح قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اس درود پاک کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمایا، اور یہ وہ درود پاک ہے، اس کو نماز کے علاوہ اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو درود ابراہیم کو نماز کے علاوہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے یہ درود پاک اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کفیل ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک اس کو دنیا اور آخرت کی خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کل ہر بندہ اس مسئلے سے دوچار ہے کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، حالات بے حد مشکل ہو گئے ہیں، پریشانیاں بے حد بڑھ گئی ہیں، غربت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، وسائل اس حساب سے نہیں گروتھ کر رہے جس حساب سے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم درود ابراہیمی کی کثرت کرتے جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے وسائل بھی اعلیٰ فرماتا جائے گا۔ اور یہ درود پاک، یہ درود ابراہیمی دنیا کے معاملات کو، قبر کے معاملات کو، حشر کے معاملات کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی درود ابراہیمی کی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیمی کی سب سے اعلیٰ شان اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کا خاتمہ بالخیر ایمان ہوتا ہے، اور خاتمہ بالخیر جو ہے یہ اس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے
तो उस वक्त अगर फरिश्ता उसके सराहने खड़ा होता है तो शैतान भी आ जाता है और शैतान कहता है, बता तूने सारी जिंदगी अल्लाह को एक माना है, उसको एक मानने की दलील तो दे, कोई एक दलील तो मुझे दे। अब उस वक्त इंसान का कुछ कहना और गुफ्तगू करना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमाए, उस वक्त जो नज़ा का वक्त होता है, जो सख्ती का वक्त उस पे तारी होता है, अल्लाह वालों, वो बड़ा ही एक मुश्किल मरहला होता है। उस वक्त गुफ्तगू करना कोई आसान बात नहीं है और करीब करीब नामुमकिन होता है। शैतान ये कहता है, बता तूने अल्लाह को एक माना और मानते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, बता उसको मानने की एक दलील दे दे मुझे। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के यानी मरने वाले के करीब ये भी ना कहो कि कलमा पढ़ ले। अगर खुदा ना खास्ता वो कहे कि मैं नहीं पढ़ता तो वो सारी जिंदगी की इबादत बिल्कुल उसकी जाया हो जाएंगी, बिल्कुल बेमायनी हो जाएंगी। लेकिन शैतान खड़ा होता है, कहता है, बता मुझे अल्लाह को एक माना है सारी जिंदगी, मुझे कोई एक दलील दे। तो इरशाद फरमाया गया कि अगर तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे अपनी जिंदगी में, तो जब खात्मे का वक्त आएगा, जब जिंदगी का सूरज गरूब हो रहा होगा, तो दुरूद इब्राहिम उस वक्त तुझ पे ये करम करेगा कि तेरा खात्मा बिल खैर ईमान पर होगा, ईमान की सलामती से दुनिया से जाएगा। इस पर अल्लाह की कितनी रहमत होगी, अल्लाह का कितना करम होगा, उस पर कितनी इनामात की बारिश होंगी। गोया कि वो बंदा दुनिया में गुनहगार था, सयाकार था, अमाल में सुस्ती थी, नमाजों में काहली थी, लेकिन वो कितना कामयाब व कामरान रहा कि उसका खात्मा बिल खैर ईमान पर हो गया। अल्लाह वालो, दरूद पाक हर बंद दरवाजे की चाबी है। अल्लाह वालो, चंद मखसूस औकात ऐसे होते हैं जिनमें दरूद पाक की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी खुश नसीब को इन औकात में दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफीक हासिल हो जाए तो वो इन औकात में ज्यादा ताकतवर हो जाता है दरूद पाक। अल्लाह वालो, ज्यादा ताकतवर होने की वजह से हमारी जिंदगी को ऐसे बदल सकता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वो मखसूस औकात कौन से हैं, ये आज वीडियो में बयान करूंगी। दरूद पाक की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो वो जुम्मे का दिन है। अल्लाह वालो, ये आज तफसील के साथ आपको बता रही हूं कि वो जुम्मे का दिन होता है। जुम्मे के दिन आप कोई भी दुआ करें, किसी भी वक्त दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर और जरूर कबूल करते हैं। जुम्मे के दिन हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जमीन पर उतारे गए वो भी जुम्मे का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, जुम्मे के दिन ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह वालो, जुमेरात की शाम से लेकर जुम्मे की मगरिब तक बहुत ही कीमती वक्त होता है। ये तमाम वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने और बरोज़े क़यामत आपकी शिफात हासिल करने के लिए बड़े ही कीमती औकात हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस गैब की खबर देने वाले नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत के साथ दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। अल्लाह वालो, जो शख्स दरूद इब्राहिम को 1.25 लाख मरतबा पढ़ने में कामयाब हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उसके नसीब में हो जाती है। नबी पाक खुद उसको अपनी ज़ियारत करवाते हैं, उसे मुलाकात का शर्फ बख्शते हैं ख्वाब में। अल्लाह वालो, जब आप दरूद पाक के सलाम इस्तगफार को मिलाकर पढ़ोगे तो अल्लाह क्या क्या नेमतें अता करेगा, आपका गुमान भी नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मेरा उम्मती मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ने लग जाता है तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इस कदर मेहरबान होते हैं, इस कदर रहमतें नाजिल फरमाते हैं कि वो दुरूद पाक उसकी तमाम परेशानियों को दूर ले जाता है। बंदे की परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें, टेंशनें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह एक और रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जब मिराज की रात जन्नत और दोज़ख का मुआयना किया तो मैंने देखा कि पुलिस रात पर एक शख्स है, वो कभी गिरता है, कभी लटकता है, कभी चलता है। अल्लाह वालो, इतने में इस बंदे ने मुझ पे पड़ा, जो दरूद पाक पड़ा था, वो दरूद पाक आता है और उस बंदे का हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालो, दरूद पाक पढ़ने वालों की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। दुरूद पाक के साथ अगर आप इस्तगफार भी पढ़ने लग जाएं तो इस्तगफार की अपनी अलग से शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, इस्तगफार को पकड़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को इस्तगफार की बरकत से वहां से रिस्क रोजी अता फरमाते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे मुबारक के अंदर बैठे थे। उनके पास उनके एक बहुत ही नेक बुजुर्ग जो कि उनके शागिर्द थे वो भी मौजूद थे। इतने में एक शख्स आता है और आकर गुजारिश करता है कि हुजूर, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, कहत साली की वजह से मेरी फसलें सूख गई हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि रब बारिश बरसाए और मेरे जो खेत हैं वो हरे भरे हो जाएं। तो आपने फरमाया, इस्तगफार किया करो। उसी टाइम एक और शख्स आया और कहा कि हुजूर, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे औलाद अता फरमा दे, बे औलादी की वजह से बहुत परेशान हूं। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तगफार करो। इतने में एक और शख्स आया और अर्ज की, हुजूर दुआ फरमाएं, बहुत परेशान हूं, तंग दस्ती है, घर में बेबरकती है, बीमारियों ने जकड़ा है, तो दुआ करें अल्लाह मेरे रिज़्क को वसी कर दे, मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे। तो आपने उसको भी कहा कि इस्तगफार किया करो। इतने में जो एक और शख्स आ गया, उसने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें, परेशानियां बेहद हैं, बहुत परेशान हूं, हर तरफ से बीमारियों ने जकड़ा है, परेशानियों ने जकड़ा है, आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सेहतयाबी दे, मेरी परेशानियां दूर फरमाए। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तगफार किया करो। इतने में जो नेक बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, आपके शागिर्द थे, उन्होंने फरमाया, हुजूर मेरी मजाल तो नहीं है, लेकिन इन 4 लोगों के अलग अलग मसाइल थे, आपने वजीफा एक ही बता दिया है, उसकी वजह क्या है? तो आप फरमाने लगे, ए मेरे भाई, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? ये आयत नहीं पढ़ी? इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा वयुरसिलुस समाअ अलैकुम मिदरारा बिअमवालि व बनीन व यजअल लकुम जन्नति व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है। और फिर फरमाया कि बेशक वो कसरत के साथ तुम पर बारिश बरसाता है। और फिर फरमाया कि वो तुम्हारे माल और औलाद में बरकत डाल देगा। और फिर फरमाया तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। अल्लाह वालों, कम से कम आप 40 दिन तक दुरूद पाक और इस्तगफार की तस्बीह पढ़ के तो देखें, मौजज़ात अपनी आंखों से देखोगे। अब आपने करना क्या है? आपने रोजाना 313 बार दुरूद इब्राहिम और साथ ही 313 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। फिर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किस्मत कैसे बदलती है, मुकद्दर कैसे संवरता है। अल्लाह वालों, मैं बहुत सालों से ये विर्द करती आ रही हूँ। मैं रोजाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ और 313 मरतबा इस्तगफार का विर्द करती हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि आप भी ये चीजें पकड़ लो, चिमट जाओ इन चीजों के साथ, दुरूद इब्राहिम के साथ, इस्तगफार के साथ। अगर क़यामत वाले दिन आप चाहते हैं कि आपके अमाल नामे में
अमाल नामा हाथ में पकड़कर अपने रब के सामने शर्मिंदगी ना हो तो अल्लाह वालों कसरत के साथ विर्द करना शुरू कर दो। घर से निकलते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, वजू बेवजू आप कसरत के साथ दुरूद इब्राहिम को पढ़ना शुरू कर दो। नमाज फजर से लेके नमाज इशा तक, बल्कि सोने तक, जब भी आपको याद आ जाए दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें और 313 का मामूल बना लें कि आपने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम हर हाल में पढ़ना है। और 313 मरतबा जब साथ इस्तगफार भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका रब आप पे राजी हो जाएगा, फिर वो भी अता करेगा जो आपका गुमान भी नहीं होगा, वहां से रिज्क अता करेगा बेशुमार।